نہیں، آئی شیئر یور کنسرن، اور مجھے بالکل جو یہ توقع ہے کہ جس طرح وار جنگوزم ادھر کیا ہے، جس طرح کی وار مانگرنگ وہاں پہ کی گئی ہے، اس کے بعد وی مسٹ ناٹ ایکسپیکٹ دیم کہ وہ کوئی اتنا اچھے ہیں. انڈیا ہمیشہ جو ہے وہ پچھلی دفعہ بھی جب 2019 میں انہوں نے 14 دن بعد اٹیک کیا تھا، اور اس بار جو ہے وہ بالکل تیار ہیں. آئی واز جسٹ ٹرائنگ ٹو سرف فیو انڈین چینلز آن دا ٹویٹر اینڈ ہیئر اینڈ دیر. تو میں نے دیکھا کہ جس قسم کی وہاں پہ، جیسے آج موک ڈرل کا آپ نے کیا ہے، تو پورا انڈیا جو ہے وہ ان کا وہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ وار پریپیئرڈ بھارت، یعنی وہ جنگ کے لیے تیار ہے انڈیا. تو ہمارے یہاں پہ جو سلسلہ ہونا چاہیے، آج جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا، اس میں تقریریں جو ہوئی ہیں وہ بلاول بھٹو کی تقریر ہوئی ہے، دوسری ہوئی ہے، لیکن ایک انفارچونیٹ بات ہے جس کو مجھے کل مولانا صاحب نے اس کے اوپر کیا اور واک آؤٹ کیا. آج بھی نہ پرائم منسٹر تھے نہ کوئی امپورٹنٹ منسٹر تھے، اور گورنمنٹ کی جو عدم دلچسپی ہے ایوان کے، اس امپورٹنٹ ایک سیشن ہے جہاں پہ ان کو آنا چاہیے، اور ابھی تک پرائم منسٹر نے عوام سے خطاب نہیں کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں جب پرائم منسٹر جب یہ بالا کوٹ کے بعد یا اس سے پہلے عمران خان صاحب نے اسپیچ دی، اور اس اسپیچ میں ڈیورنگ ہز لائیو اسپیچ اس میں عوام سے خطاب کرتے انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ریٹیلیشن کریں گے تو ہم اس کا جواب دے نہیں سکتے، ہم دیں گے. سو دس سارٹ آف میسیجنگ وی نیڈ. اور ہمیں بالکل یہ جو ریڈ فلیگ ہے یہ بالکل آن ہے. اس کو کسی طرح سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ول بی دا فولس پیراڈائز. وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. فل تھروٹل ایک انہوں نے اٹیک کرنا ہے پاکستان. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو مودی اور ہندوتوا اور آئی ایس ایس کا جو ایک نظریہ ہے، مائنڈ سیٹ ہے، ان کی جو پالیٹکس ہے، وہاں پہ جو پالیٹیشنز ہیں وہ اپنے الیکشن کے لیے کسی بھی طرف چلے جاتے ہیں. بہار بہت بڑی اسٹیٹ ہے جس کا الیکشن آنے والا ہے، اور ظاہر ہے اس کی بہت بڑی سیٹس ہوتی ہیں اپنا نیشنل اسمبلی میں، جو ان کی نیشنل اسمبلی ہے جس کو کیندر سرکار وہ کہتے ہیں، اور وہ وہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ایک الیکشن آنے والا ہے. دوسری اسٹیٹس کا الیکشن بڑا آنے والا ہے. تو جس طرح کا وہاں پہ ایک اس سے اب سٹیپ بیک کرنا، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اتنا زیادہ بڑھا دیں کہ اگر مودی کو انٹرنیشنل فرنٹ پہ وہ نہیں سپورٹ ملی جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے. رافیل کا بھی جو ہے انڈیپینڈنٹ سورسز بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کا ایک اچھا جواب دیا ہے، لیکن ابھی تک جو کائنیٹک آپریشن وہ پلان کیے بیٹھے ہیں وہ کریں گے. اس لیے ہمیں بڑا کوشش رہنا چاہیے، اور حکومت کو بالکل اس کو لائٹلی لینا. اس میں نا ایکچولی یہ بات ٹھیک ہے، بلکہ میں ذرا قادر صاحب سے انکلوڈ کر لوں گفتگو میں. قادر منظور صاحب، یہ جو معاملہ ہے، اب دیکھیں نا، اس کا جو کائنیٹک معاملہ ہے، جو ملٹریز کے آپشنز ہیں، وہ تو جو اسپیشلسٹ ہیں، آرم فورسز ہیں، انہوں نے اپنا پلان کیا ہوا ہے، اور جو ابھی تک ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے کہ ہمارا پلان ٹھیک ہے، اس میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ڈپلومیٹکلی بھی جس طرح ابھی فیصل صاحب بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کو وہ بیکنگ نہیں ملی جو وہ سمجھ رہے تھے یا چاہ رہے تھے، اور یہ بھارت کے اندر سے بھی اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی ملک نے پاکستان کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ بلیم نہیں کیا. مگر ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اندرونی معاملات چل رہے ہیں، قادر منظور صاحب، میں ذرا تھوڑا سا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاتھ میں اس ٹائم چیز ہے، یعنی سیاستدانوں کے ہاتھ میں، اس میں کیا تھوڑا پی ٹی آئی کے ساتھ مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے. لیکن یہ ایک سنہری موقع ہے کہ وہ آپ ان کو اس نیشنل فولڈ میں لائیں، وہ آنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن شاید یا تو مس ہینڈل ہو رہا ہے یا مس جج کیا جا رہا ہے. کیا پرابلم ہے؟ کیوں نہیں پاکستان تحریک انصاف کو آپ اس طریقے سے ان کی آواز کو اپنے آواز کے ساتھ ملا پا رہے ہیں؟ ہمارے عام فورسز جو ہے نا بالکل تیار ہے، اور تیار نہیں ہے بلکہ پورا انہوں نے بندوقیں لوڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اگر بارڈر کی ڈسٹرکٹ پہ دیکھ لیں تو وہاں فوجی مشقیں چل رہی ہے. آپ اگر میزائل پہ میزائل جو ہے نا وہ تجربے دیکھ رہے ہیں، تو وہ تو پورے انڈیا کو بتا رہے ہیں کہ ایک مارو گے 10 ماریں گے ہم. لیکن شاید مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے نا وہ مودی سے لڑنے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف خواجہ آصف کہتا ہے کہ ہم ننگے پاؤں جو ہے نا عمران خان کے پاس جانے کو تیار نہیں. دوسرے طرف اڈیالہ جیل کے سامنے جو ملاقات کی کرنا ہے، جو کہ آئین کا آرٹیکل 10 کے عین مطابق ہے، جین مینول کے مطابق ہے، وہ ملاقاتوں کے لیے نہ صرف ملاقات کرتے ہیں بلکہ خواتین تک جو ہے نا بے حرمتی کرتے ہیں اور ان کی دوپٹے کھینچتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے. اور پھر
कौमी असम्बली के इजलास में जहां तक मुझे एक अंदाजा है या मुझे इतला है 10 करोड़ रुपए डेली खर्चा है स्टाफ के अलावा। अब आपने कौमी असम्बली का इजलास इन बर्निंग इश्यू पे आपने बुलाया है, वजीर आज़म नहीं है, वज़रा नहीं है, एक को अक़लियती वजीर है और एक को नॉन सीरियस वजीर है अता तारड़, जिसको कुछ सुनने को तैयार नहीं है। रात 2:45 बजे ऐलान कर दिए जंग 36 घंटे 48 घंटे के अंदर होगा। शुरू हो गए। मैं तो समझ रहा था आदमी कादिर मंदोखेल साहब, बेवकूफ आदमी, तुम रात को 2 बजे लोगों को परेशान कर रहे हो। बिलावल साहब तो आज तारीफ कर रहे थे गवर्नमेंट की, आप तो बड़ी सख्त तनकीद करना शुरू हो गए। मैं कहता हूँ ये इससे बड़ा बेवकूफ आदमी नहीं है। रात 2:45 बजे जो ना पता नहीं किसने कान में बोल दिया इंडिया हमला करा या खुद डर गया। वो बाबा डर गया तो आप उसी तरह स्टेप भी तो ले लो। बढ़ के तो आप बड़े मारते हो असेंबली के अंदर और जेल के सामने जो ना खवातीन को लोगों। लेकिन मैं एक चीज आपको, ये कौन सी पॉलिसी है कादिर मंदोखेल साहब, मैं दूसरी बात, मैं एक चीज ऐड कर दूं, ये जो आप जो अता तारड़ साहब की बात कर रहे हैं ना, जहां तक हमारी इंफॉर्मेशन है, ये जिस रात को अता तारड़ साहब ने ये बात की थी, ये वही रात है जिस दिन भारत की तरफ से उनके 4 रफेल उड़े थे और हमारी असेसमेंट ये थी कि वो हमारे पे हमला करने आ रहे हैं, जिसके नतीजे में हमने रिटेलिएट किया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को इस्तेमाल किया, उनकी सारी कम्युनिकेशंस को जैम किया और उनको फोर्स किया कि वो वापस मुड़ें। तो मेरा अपना अंदाजा ये है कि क्योंकि ये वही रात थी तो ऐन मुमकिन है कि उस कॉन्टेक्स्ट में अता तारड़ साहब ने ये बात आके कही थी। ये बात अगर ये दोनों का ताल्लुक आपस में बज़ाहिर जो है वो लॉजिकल लगता है। मैंने कहा सिर्फ आपके सामने ये इंफॉर्मेशन रख दूं मैं। बहुत शुक्रिया आपकी इंफॉर्मेशन का। आप मुझे बता दो रात 2:45 बजे आप पाकिस्तानी आवाम को जगा रहे हो कि अपनी खिड़की दरवाजे बंद करें ताकि इंडियन फौज की और जासूम की मिसाइल और गोलियां अंदर ना आ सकते। तो क्या बातें कर रहे हो यार? आप फौजी तैयारी है और पूरा फुल फ्लैश तैयारी है, आवाम को परेशान करने की क्या जरूरत है? इस शख्स को 2:45 बजे अपनी बरमबाजी दिखाने के लिए मीडिया पे लाइव आने के लिए आप मुझे तो खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था। आप ज़हनी तौर तैयार नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहब जो है ना वो मोदी का नाम लेने को तैयार नहीं है। इधर आप कौम को परेशान करने के लिए बैठे हुए असेंबली में जो है ना वो सुल्तान दराई की तरह भड़के मारने को आप कर रहे हो, अपोजिशन को सदुपयोग कर रहे हो। सवाल ये है आपने जो इस अहम मौके पे असेंबली के इजलास बुलाया है, आपके अपने वजीर मौजूद नहीं है, आपका वजीर आजम डिप्टी वजीर आजम जो वजीर खारजा है वो मौजूद नहीं है, तो किस बात की आप रात 2:45 बजे लोगों को परेशान कर रहे हो? तो आपके ख्याल में चलें ठीक है, पॉइंट नोटेड। मैं वैसे एक्चुअली वही मैं कह रहा था, मैं थोड़ा सा हैरान हो रहा हूँ कि आपकी जमात और आपकी जमात की क़यादत जो है वो तो इस टाइम मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करिए गवर्नमेंट को, लेकिन आप तो बहुत ही फ्रंट फुट पे आके उनकी ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मेरी जमात कसूर है क्या? नवाज शरीफ की जमात की हुकूमत नहीं है? मोदी के नाम लेने में उनको क्या बुखार आ जाता है? मरियम नवाज जो सबसे बड़े सूबे के वजीर आला है, क्या उनकी वालिद की पार्टी की हुकूमत नहीं है? उनकी अपनी हुकूमत नहीं है? मोदी का नाम लेने में नहीं चला, क्या वो मोदी के साथ दोस्ती का या 500 लोगों को जहाज जो लेके आए थे नवाज शरीफ के सालगिरह पे वो दोस्ती निभा रहा है? आप ये भी तो बात करें ना। आप फैसल साहब कहां तक जायज है तनकीद? देखिए बिल्कुल जायज तनकीद है। देखिए रोल्स होते हैं स्टेट में, एक आर्म फोर्सेस का डिफेंस का रोल है, सियासतदानों का रोल होता है कंसेंसस क्रिएट करना, और हुकूमत का काम होता है उस कंसेंसस को मैच्योर करना, उसको कॉन्क्रीट करना। क्या हो रहा है कि आप इस वक्त हुकूमत जो स्टेप्स उठा रही है, जो डयाला के बाहर के मुनाजिर हैं, आप उनसे यकजहती का पैगाम तो नहीं दे रहे। हालांकि जब पिछले मंगल को इमरान खान साहब की जो ट्वीट आई है हिंदुस्तान के बारे में, वो बड़ी वोकल थी और वहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद पीटीआई और इमरान खान ज़ाती डिफरेंसेस को आगे रखेंगे इस मौके पर। लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए हमने, हमारे लीडर ने, हमारी पार्टी ने बिल्कुल उसको उनकी एक्सपेक्टेशंस को नील किया और एक एंटी जो स्टांस था पाकिस्तान के हक में वो बड़ा वोकल लिया। उसकी आप देखिए कि कितनी ऑडियंस इंटरनेशनल वर्ल्ड में हुई है, कितनी अपना अप्रिसिएशन हुई है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर, ऑल ओवर द वर्ल्ड इमरान खान की आवाज़ को सुना जाता है। आज अगर आप ये जो बहनों की मुलाकात आपने करवाई है, अगर आज लड़ाई कराए बगैर करवा देते, वकला की मुलाकात करो, कौन सी क़यामत आ जानी थी? ये वैसे एक्चुअली बात आपकी ठीक है कि इसमें मुझे भी एक्चुअली ये समझ नहीं आ रही कि इसकी ज़रूरत क्या है। और ये फेवर भी नहीं है, इट्स नॉट अ फेवर, इट्स अ कोर्ट ऑर्डर, लीगल उनका राइट है। आप जिस तरह से उन बहनों की इस उम्र में दुपट्टे खींच रहे हैं, को धक्के मार रहे हैं, शर्म ना कर फिर
मैं अब एक और भी, आपने आमिर डोगर को मारा, आपने सुहेल खान अफरीदी हमारा मिनिस्टर है पीटीआई केपी का, उसको मारा आपने, उमर अयूब को धक्के दिया आपने, बाकी जो लीडर्स हैं हमारे उनको, कारकुनान को। अमना शेख साहब जरा पूछना जी, अच्छा आपने ये दोनों हमारे मेहमानों की बात सुनी, कादर मंदोखेल साहब ने तो बहुत ही यानी कि सख्त अल्फाज में तनकीद की है, फैसल चौधरी साहब भी यही बात कर रहे हैं। मैं भी एक्चुअली समझना चाह रहा हूँ कि ऐसे मौके पर ज़रूरत क्या है गवर्नमेंट को ये सब कुछ करने की, जिस तरीके से अडियाला में एक रोज़ाना की बुनियाद पे एक ये हम सीन देखते हैं कि धक्कम पेल हो रही है, एक तूफान बदतमीजी खड़ा हुआ है, क्या ज़रूरत है इसकी? वाई कांट यू जस्ट बी नॉर्मल विद पीटीआई इतने नाजुक मोड़ पे? साहब, एक तो सबसे पहले आपने यकीनन सुनी होगी अता तारर साहब की तकरीर उन्होंने की नेशनल असेंबली के अंदर, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने तो इस हद तक, क्योंकि आपने वर्ड यूज किया कि वाई कांट यू बी नॉर्मल, तो मैं उसके ऊपर कहना चाहूंगी कि नॉर्मल तो बहुत छोटा लफ्ज है। उन्होंने जो कहा, और वो हमारे क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ही सेड कि मैं तो ये कहता हूँ कि इमरान खान भी उतना ही अच्छा है जितनी मेरी लीडरशिप अच्छी है, क्योंकि इस वक्त बात पाकिस्तान की है, इस वक्त बात किसी सियासी जमात की नहीं है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का तो ये स्टांस है, ऑफिशियल स्टांस है, और ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं खुद बता नहीं, लेकिन जो अडियाला के बाहर तो कुछ और नजर आ रहा है ना। नहीं, मैं इशू तो वो है। दूसरी बात जो अडियाला के बाहर की बात हो रही है, और फैसल हुसैन साहब ने कहा किसी कोर्ट का ऑर्डर है, तो कोर्ट ऑर्डर में साथ ये भी है कि जो अडियाला के बाहर प्रेस टॉक नहीं होगी, अडियाला के बाहर कोई सियासी मुजाहरे नहीं होंगे। अब आप मुझे ये बताइए, दो चीजें, इसके दो एस्पेक्ट है। पहली बात तो ये कि अकॉर्डिंग टू द सुपरिटेंडेंट को इजाजत है कि वो किसी भी सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से किसी भी वक्त किसी भी कैदी को मिलने वाले किसी भी विजिटर को रोक सकता है। कोई ऐसा रूल नहीं है जो इमरान खान साहब के लिए स्पेशली बनाया गया, ना ही वहाँ पे कोई पीएमएलएन का या शरीफ फैमिली का जाती नुमाइंदा वहाँ पे तैनात किया गया कि वो डिसाइड करे। अगर सुपरिटेंडेंट ने ये डिसाइड किया है, उन्होंने किसी सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से किसी को रोका, ये रूल्स के मुताबिक। ये देखिए, ये तो अमना साहब ये तो ऑफिशियल लाइन है ना, ये तो ऑफिशियल लाइन है, बट एक्चुअली द एक्चुअल इशू इज कि वो उनको बाकायदा नहीं मिलने दिया जा रहा, उसके पीछे एक सियासी हिकमत अमली है, सीधी सी बात है, लेट्स बी ऑनेस्ट। और हिकमत अमली की तो जरूरत नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नॉर्मल टाइम्स चले फिर भी मान लेते हैं, लेकिन ये जो मौका आया हुआ है एक्चुअली हमें लग रहा है कि जंग छिड़ सकती है इसमें। अगर अडियाला के बाहर ये इस तरह के सीन्स ना हो तो उसमें फायदा ही है, गवर्नमेंट का भी फायदा है, मुल्क का भी फायदा है। मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आ रही कि उसकी जरूरत क्या है। मैं कह रही हूँ, मैं आपसे 100% एग्री कर रही हूँ। आप तो शायद ये कह रहे हैं कि ना हो तो फायदा है, मैं समझती हूँ होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि ये क्यों हो रही है। अलीमा खान साहिबा ने आज से 5 दिन पहले जिस तरह की बयानबाजी की वहां जाके अडियाला के बाहर, जिस तरह के कमेंट्स दिए, कहा कि जी ये तो जंग है ही नहीं, ये तो नूरा कुश्ती है इंडिया पाकिस्तान की। अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो गवर्नमेंट हैज नो रिजॉर्ट। गवर्नमेंट भी एज इन, जब मैं गवर्नमेंट का वर्ड यूज करती हूँ तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई वजीर आजम या चीफ मिनिस्टर, बट ऑब्वियसली जो इदारे हैं, जो आपकी पुलिस है, उनको इन सारी चीजों को रोकना है। इस वक्त हमने एक यूनाइटेड स्टैंड देना है, और आप अडियाला जेल के बाहर जाके एक तमाशा खड़ा करके बैठ जाएंगे, और नॉट ओनली तमाशा, आप अंडरमाइन करेंगे हमारे एक्सटर्नल थ्रेट को। आप इस तरह के बयानात देंगे कि नूरा कुश्ती हो रही है, ये एक दूसरे को दिखाने के लिए ऐसी बातें करें। दैट वाज, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे से बड़ी भी है, बट दैट वाज शेमफुल एज अ पाकिस्तानी अगर आप इस तरह की बात करें तो। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हो रहा है, वापस आते हैं तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। डू स्टे विद अस।